बच्चों, टुडे विल डिस्कस अबाउट the structure and function of a cell organelle, chloroplast. This is the very important cell organelle present in the green part of plant, especially in the leaf, in the mesophyll cell. And this chloroplast is oval in shape, surrounded with double layer of membrane. It plays very important role in photosynthesis. During this process, the food is going to synthesize and oxygen gas is going to release in the presence of carbon dioxide, water and the light energy. So here we will see what is the structure of chloroplast and how it is working in photosynthesis process. But the chloroplast is a type of plastid. The plastid are the cell organelle present in the plant cell. Plastid are different types like chloroplast, chromoplast and leucoplast. So at first the plastid, then we will discuss about chloroplast, chromoplast and leucoplast. So plastid. Plastid. It was discovered by plastid. Plastid was discovered by Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. The plastid was discovered by Ernest Haeckel. This plastid is present in plant cell. It is found in plant cell. Plastid is found in plant cell. Plastid is different types like chloroplast, that is green, then chromoplast, that is colored. Colored means other color than the green, and the leucoplast. Leucoplast. This is colorless plastic. So the chloroplast is green color plastic, chromoplast is colored like red, orange, and the leucoplast is colorless plastic. So let us discuss about the chloroplast. What is the structure of chloroplast and where it is found? The chloroplast is present in green part of plant. Chloroplast is present in green part of plant. It is found in green part of plant. Where it is found? In the green part of plant. Let us see here. Suppose here we will discuss about the chloroplast. Here is one plant. Here is its root, and in the plant here is its leaf, and in the leaf they are doing photosynthesis in the presence of light. So here in this leaf the mesophyll cells are present. Here is the mesophyll cell, and in the mesophyll cell large number of chloroplast. Large number of, this is mesophyll cell, in leaf, and this is chloroplast. Now let us see what is the structure of this chloroplast. This chloroplast is little just oval in shape. It is more or less oval in shape. It is surrounded with double layer
double layer of membrane. This is the outer membrane. This is inner membrane. Here inside this chloroplast, liquid material is present, that is called as stroma or matrix. Here liquid material is present, that is called as stroma or matrix. But inside the chloroplast, the coil-like structure are present. Several coil-like structure are present like this. These coil-like structure are present in the chloroplast, and these coil-like structure are present in the chloroplast. This is called as grana. Here in the chloroplast, ribosomes are present. 70s ribosome are present. Here in the chloroplast, 70s ribosome and circular, and DNA is present here, and DNA is present. Ribosome and DNA is present here. This is ribosome, 70s. Yes, is Sedgwick segmentation coefficient. Here is the DNA. Okay. In this chloroplast, in the plant, green part, especially in the leaf, mesophyll cell. In mesophyll cell, there is the chloroplast, and here the chloroplast is rounded in shape, oval in shape. It is surrounded with outer membrane, inner membrane. Inside, liquid material is present, that is called stroma matrix. And here, in this stroma, the coil-like structure is present, that is called as grana. And this grana is the site of light reaction. यहाँ फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है. ये क्लोरोप्लास्ट ओवल स्ट्रक्चर है, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन से घिरा है. इसके अंदर लिक्विड मटेरियल है जिसको हम स्टोमा मैट्रिक्स कहते हैं, और इस लिक्विड मटेरियल के अंदर में ग्रेना, ये स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर है ग्रेना. यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है. लाइट एनर्जी इज गोइंग टू ट्रैप. व्हाई? बिकॉज हियर ऑन द ग्रेना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. Here chlorophyll molecules are present, and these chlorophyll molecules are playing important role in trapping the solar energy. जैसे आपके घर के ऊपर में डिश लगा होगा, डिश प्रोग्रामिंग को जो प्रोग्रामिंग सेंड किया जाता है सेंटर से, वहाँ से उसको ट्रैप करके वायर के माध्यम से टेलीविजन सेट को देता है, तभी आप कोई प्रोग्राम देख पाते हैं. ठीक वैसे ही यहाँ पे जो यहाँ प्लांट है, सनलाइट आया आकर के लीफ पे पड़ा, लीफ पे जैसे पड़ेगा मेसोफिल, मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पे, ऑन द ग्रेना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट. ये मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, और लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसको एटीपी और NADPH उसमें स्टोर कर लेंगे, और वही फिर स्टोमा में डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज सिंथेसिस के समय यूज होगा, और इट विल गेट स्टोर्ड इन ग्लूकोज. वो ग्लूकोज में फिर बच जाएगा, और जब हम उसी ग्लूकोज को खाते हैं या पौधे फिर यूज करेंगे ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, वही ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में, फर्मेंटेशन में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ब्रेकडाउन होके दैट विल गिव एनर्जी. और वही एनर्जी का इस्तेमाल हम चलने में, दौड़ने में, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, बोलने में, जितने भी हमारे काम हैं उसी एनर्जी से करते हैं. इसका मतलब जो सन की एनर्जी है इस प्लांट की लीफ में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस ग्रेना के ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने ट्रैप कर लिया, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने उसको एटीपी ट्रैप करके उस एनर्जी को फिर यहाँ पे ग्रेना में एटीपी NADPH में बदला, फिर आकर के स्टोमा में वो ग्लूकोज में स्टोर हो गया डार्क रिएक्शन में, और वही ग्लूकोज को हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने लिए एनर्जी लेने के लिए. इसका मतलब यह है कि दिस क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो प्लांट के अंदर में यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग लेता है, और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज भी बनता है और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है. दोनों काम होते हैं, भोजन भी और ऑक्सीजन भी. दोनों हमारे लिए कहाँ से मिलता है? हरे प्लांट से मिलता है, ग्रीन प्लांट से मिलता है, और ये कहाँ बनता है? इन द क्लोरोप्लास्ट. तो ग्रेना इज, दिस ग्रेना इज साइट ऑफ, ग्रेना इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन. अब क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, और ग्रीन कलर के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं कहाँ एक्चुअली? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. जैसे सपोज कर लीजिए ये जो ग्रेना किसका बना है? ग्रेना इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन की तरह का है.
अब इसके ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, हरे रंग के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आ जाए। जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हरे रंग के हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन पे, तो पूरा ये मेम्ब्रेन ही हरा हो जाएगा। अब इस पे हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लगा देते हैं, ये हरे रंग का ये लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दिस बिकम्स टोटली ग्रीन इन कलर। व्हाई? सपोज प्रीवियसली इट वाज नॉट ग्रीन, previously just suppose this is not green but this becomes little bit green in color. Why? यहाँ पे सपोज कर लीजिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ग्रीन कलर का होगा तभी ये ग्रीन होगा। यहाँ पे हमने ग्रीन कलर लगाया, इंडिकेशन कि ऐसा ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो सकता है ग्रीन कलर। अब ये ग्रीन हो गया, लेकिन इसमें आप रखेंगे कैसे? तो इसमें रखने के लिए दिस अंडरगो फोल्डिंग, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं। जब ये फोल्ड करेंगे ऐसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ ल्यूमेन बन गया, बीच बीच में देखिए होल बन गया। ये ल्यूमेन, यही ल्यूमेन दिखाई, ये मेम्ब्रेन है। दिस ग्रेना इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ए थैलेक्वाइड. So the grana is made up of this membranous structure that is called a thylakoid, and on the surface of thylakoid chlorophyll molecule are present. So this thylakoid is green due to presence of chlorophyll. This thylakoid is green, and this thylakoid undergo folding. Then it form what? Then it form grana. So this undergo folding and form grana. So grana is composed of grana is made up of thylakoid, a membranous structure, and on the surface of thylakoid I told chlorophyll molecule are present. So this grana is green, or due to this total entire chloroplast is green, and where chloroplast is present that part means leaf is green. So जहाँ जहाँ ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा माने क्लोरोप्लास्ट होगा, दैट पार्ट विल बी ग्रीन इन कलर. अब ग्रीन कलर का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ पे, इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. यहाँ पे ग्रेना में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट. ये कौन कौन हो सकते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल. तो यहां पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल. So chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoid and xanthophyll, these type of photosynthetic pigments are present. इसमें से मेन कौन है? क्लोरोफिल A, उसके बाद B और कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल. क्लोरोफिल A and B are present in large amount. Chlorophyll A and B, chlorophyll A is especially green in color. Chlorophyll A is green in color. So this chloroplast looks green, and where it is found that part is green in color. Chlorophyll A form reaction center. अब ये chlorophyll B and carotenoid and xanthophyll, these are the accessory photosynthetic pigment. Accessory photosynthetic pigment means they are trapping solar radiation and giving to chlorophyll A. Chlorophyll also trapping solar radiation, but chlorophyll B, carotenoid and xanthophyll, they trap solar radiation and provide to A. अब वहाँ पे एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा. देन ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन गैस भी निकलता है. तो जो यहाँ ऑक्सीजन गैस निकलती है वो वाटर की स्प्लिटिंग से ही निकलती है. वो वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है? इस ग्रेना के ऊपर लाइट रिएक्शन में. जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे तभी जाकर के उस एनर्जी से फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा और वहाँ से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और
ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। वो ऑक्सीजन गैस फिर क्या वातावरण में आ जाती है, उसको हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस में लेते हैं, और प्लांट भी जब रिस्पिरेशन करते हैं वो भी लेते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में एक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेते हैं, और वाटर का स्प्लिटिंग होके वहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन निकलती है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है? इन द ग्रेना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र देखें, इसका क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र देखें तो ये क्या है? C55H72O5N4Mg। ये एक प्रकार का केमिकल है। एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का किसका बना है? कार्बन के 55 एटम, हाइड्रोजन के 72 एटम, ऑक्सीजन का 5 एटम, नाइट्रोजन के 4 एटम और मैग्नीशियम का 1 एटम। माने कार्बन का 55, हाइड्रोजन का 72, ऑक्सीजन का 5, नाइट्रोजन का 4, मैग्नीशियम का 1 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का बनाएगा। ऐसे ही क्लोरोफिल की बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी यहाँ पे C55H70O6N4Mg। अब क्लोरोफिल बी में क्या है? क्लोरोफिल बी में C55H70, 2 हाइड्रोजन कम और ऑक्सीजन एक ज्यादा, O6 और N4Mg। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम से मिलके बने हैं, और इनके अंदर फोटॉन एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की क्षमता आ जाती है। यहाँ पे ग्रेना में 2 सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 1 और 2। तो फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 1 और 2 बनते किसके हैं? यही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही। जैसे फल की दुकान पे जाए, वो सेब को अरेंज किया है ऐसे एक एक करके, नीचे ज़्यादा, फिर कम, फिर ऐसे करके, फिर उधर में ऑरेंज को अरेंज किया है। तो दुकान पे देखें अलग अलग ऐसे अरेंज करते हैं। वैसे ही फोटो सिस्टम सेकेंड में भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अरेंज है, और फोटो सिस्टम सेकेंड फर्स्ट में भी। तो फोटो सिस्टम सेकेंड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। जब लाइट एनर्जी ट्रैप होगा तो वाटर स्प्लिट होगा, और उससे जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। वही इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एनर्जी लूज करेगा, वो फिर एटीपी में बच जाएगा। कब? जब हाइड्रोजन को पंप करेगा, ल्यूमेन में आएगा, ल्यूमेन यहाँ मैट्रिक्स में हाइड्रोजन, प्रोटॉन आएगा, और वह एनर्जी वहाँ पे जब लूज करेगा तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज किया एनर्जी, उसी एनर्जी से प्रोटॉन पंप होकर ल्यूमेन में आया, और यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो पंप होकर के जब मैट्रिक्स में आएगा, यहाँ पे ऑक्सीसोम होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो उसके जब ऑक्सीसोम F0 पार्टिकल्स होके आएगा तो वही पे एनर्जी लूज होगा और एटीपी बन जाएगा। और जो प्रोटॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नॉर्मल हो गया, फिर प्रोटॉन के पास आ गया, फिर वो हाइड्रोजन एटम बन गया, और वो फिर NADP से मिलकर NADPH। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि यहाँ ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकलते हैं वाटर से और ऑक्सीजन गैस, और यहाँ स्टोमा में डार्क रिएक्शन होता है, वहीं वही NADPH और ATP यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स हैं RUBP, उससे मिल करके केमिकल रिएक्शन होंगे स्टेप बाय स्टेप, और ग्लूकोज बनता है। तो भोजन भी बना और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। इसलिए यह जो है क्लोरोप्लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इट प्लेज इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका एक रिएक्शन है। एक रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। एक रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। जैसे यहाँ पे देखें, सिक्स CO2 प्लस 12H2O। अब यहाँ पे लाइट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। अब यहाँ क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यह ऑक्सीजन गैस निकलेगी और यह ग्लूकोज बना। अगर आप
एटम को देखें तो यहाँ 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन। हाइड्रोजन 12s2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन, यहाँ 6s2 12 हाइड्रोजन, यहाँ 12 12 24। ऑक्सीजन यहाँ 6 दूनी के 12 और 12 12 24, यहाँ 6 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन 12 और 6 दूनी 12 12 12 24। मतलब एटम दोनों तरफ बराबर है। लेकिन नया क्या हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, here in the presence of light also in the chloroplast, glucose synthesized and oxygen gas is going to release. So this chloroplast is very important organ where photosynthesis occur, and in this process plant are releasing oxygen gas as well as synthesizing food. So this is the structure of chloroplast and its function, the photosynthesis. Now one more is the chromoplast. chromoplast क्या है? कलर्ड प्लास्टिड, आप जानते हैं। जैसे अच्छा यहाँ पे एक चीज और, ये जो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में तो भाग लेता ही है, इसमें 70s राइबोसोम है। इट कंटेन्स 70s राइबोसोम एंड इट्स ओन डीएनए, इसका खुद का अपना डीएनए है, इट्स ओन डीएनए एंड 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट। इट मींस इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस and it can synthesize the various enzymes which are needed by the chloroplast for the synthesis of food. So this chloroplast is called as semi-autonomous cell organelles. It is called as semi-autonomous cell organelles. One hand it is the site of photosynthesis, भोजन बनाने में मदद करता है, ये भोजन बनाने का काम करता है, फूड सिंथेसिस का काम करता है प्लांट में। दूसरी तरफ इसमें 70s राइबोसोम और डीएनए है, इसलिए इसको ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है, एंजाइम बना सकता है, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिज्म, और ये भी सेमी ऑटोनॉमस, बोथ आर द सेमी ऑटोनॉमस सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। And now we will discuss about the chromoplast. You have seen tomato and chili. When it is unripe, it becomes green. वो green color के होते हैं. And when it ripen, जब वो पकते हैं तो लाल हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अनराइप है तब वो ग्रीन है, पके नहीं, कच्चे हैं तो ग्रीन है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ज़्यादा है और कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल कम है। लेकिन जैसे वो पकता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तो क्या हो जाता है? कलर्ड हो जाता है। तो अनदर वन प्लास्टिड इज, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ये तो क्लोरोप्लास्ट है। और दूसरा प्लास्टिड हम बात करेंगे, दूसरे प्लास्टिड की बात करेंगे, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज एक्चुअली फाउंड इन कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। जहां कलर्ड पार्ट होंगे, जहां कलर्ड पार्ट होंगे वहीं पे क्रोमोप्लास्ट होगा। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कहां होगा? इन द कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे पके फल, कोई भी पका फल हो, फ्लावर हो, उसके सेल में ये प्लांट सेल हो गया। अब यहां पे कलर्ड प्लास्टिक, तमाम सारे ऐसे कलरफुल कलर्ड प्लास्टिक आर प्रेजेंट। So this is chromoplast. This is chromoplast. अब ये क्रोमोप्लास्ट कैसा है? क्रोमोप्लास्ट कैसा है? ये जो है कलर्ड, इट इज कलर्ड प्लास्टिक। क्रोमोप्लास्टिक COLOURED, colored plastic. It is found in colored fruits like ripened tomato, like ripened chili, and it is also found in the petals of the flower. और इसके बाद third one category is the leucoplast. Leucoplast is colorless plastic. It do not contain color. Leucoplast is colorless plastic. It do not contain
ल्यूकोप्लास्ट means colorless plastid. Leucoplast is 3 types: amyloplast. Amyloplast stores starch, just it is found in grains, cereal grains, wheat, paddy, in the potato also. If you will see the section of potato की सेल का अगर आप देखें तो in the potato some granular in the potato cell, here in the cell some granular structure is present. That granular structure is like this. So many this granular structure, it is colorless. Granular structure is present. This is starch, it stores starch. This is amyloplast. It stores starch. ये स्टार्च स्टोर करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है. पोटैटो में जो ट्यूबर हम खाते हैं उसमें एमाइलोप्लास्ट है. व्हीट राइस जो खाते हैं उसमें एमाइलोप्लास्ट है. एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च. जब पौधे पत्ती में भोजन, यहाँ पत्ती में भोजन बनाया और पत्ती में भोजन बन करके ग्लूकोज आया और स्टोरेज आर्गन में वो ग्लूकोज फिर स्टार्च में बदल के स्टोर हो जाता है. आवश्यकता से जो ज़्यादा है स्टोर हो जाता है फॉर द फ्यूचर यूज, और उसी को हम लोग भी खाते हैं. और फिर वही स्टार्च को डाइजेस्ट करके जब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ग्लूकोज में बदलता है फिर उसका हम ब्लड में आता है, फिर सेल में आता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन. इट गिव्स अस एनर्जी. तो स्टार्च कहाँ स्टोर होगा? एमाइलोप्लास्ट में. एमाइलोप्लास्ट क्या है? एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है, कलरलेस प्लास्टिड है. और इसके अलावा प्रोटीनोप्लास्ट. सेकेंड प्रोटीनोप्लास्ट मीन्स प्रोटीनोप्लास्ट दैट स्टोर्स प्रोटीन. इसको एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं. सेकेंड प्रोटीनोप्लास्ट सेकेंड प्रोटीनोप्लास्ट. इसको कहीं कहीं एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं. एल्यूरोप्लास्ट इट स्टोर्स प्रोटीन. एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर किया था? इट स्टोर्स स्टार्च. एमाइलोप्लास्ट ने क्या स्टोर किया था? स्टार्च. और प्रोटीनोप्लास्ट ने क्या स्टोर किया? प्रोटीन. और तीसरा है दिस इज फाउंड इन, जैसे मेज है, राइस है, उसके बाहर जो हार्ड खोल हटाएंगे उसके बाद चावल के ऊपर पतली सी परत एक मिलेगी, दैट इज एलुरोन. मेज में भी वैसे ही मोनोकार्ड में एलुरोन, उसमें प्रोटीन स्टोर्ड है, विटामिन भी कुछ स्टोर्ड है. और जहाँ जहाँ प्रोटीन, से दाल है, पल्सेस है, उसमें भी प्रोटीन होता है. तो प्रोटीन कहाँ स्टोर्ड है? इन द प्रोटीनोप्लास्ट. और इसके बाद इलायोप्लास्ट. दिस स्टोर्स फैट. अभी कहाँ पाया जाता है? ये प्रोटीनोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पल्सेस में. ये प्रोटीनोप्लास्ट पल्सेस में, ये सीरियल ग्रेन्स में और पोटैटो में. और इलायोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? इन आयल सीड्स में. जितने भी तेल वाली फसलें हैं जैसे मस्टर्ड है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, इसमें दिस इज द इलायोप्लास्ट दैट स्टोर्स फैट. आयन, इट स्टोर्स आयन. एंड प्रोटीनोप्लास्ट जैसे पल्सेस हैं, दाल है, उसमें प्रोटीन. एलुरोन लेयर भी होता है ग्रेन्स में, उसमें भी है प्रोटीन. एंड द एमाइलोप्लास्ट इट स्टोर्स स्टार्च इन द सीरियल ग्रेन्स एज वेल एज इन पोटैटो. सो दीज आर द स्टोरेज प्लास्टिड. दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट स्टोरेज. द व्हाट इज गोइंग टू सिंथेसाइज इन प्लांट, दैट is going to store for the future use also. So in amyloplast starch, proteinoplast protein, elayoplast ion means fat. And this chloroplast, ये chloroplast का काम क्या है? Plays important role photosynthesis. So this is all about the chloroplast, plastid, chloroplast, chromoplast, color plastid, and the leucoplast that helps in storage of synthesized food. Thank you very much.